इसका एक्सट्रीम्स पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हर वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है. It is going to satisfy all the algebraic treatments. Then it is used by the researchers, scholars, and even governments. What are the demerits then? Demerit is what it is very difficult. You can just see a square root, finding out square root of different things is not going to be so easy. Then it is more affected by extreme values. ये extreme values से भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है. It can be used only by experts. ये सभी के बस की नहीं है. All scholars cannot use it, but unless or until they are expert in applying this method. प्यारे बच्चों, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर अब आपके सामने आ रहा है जिसको हम कोरिलेशन के नाम से जानते हैं. इसमें देखिए, हाइट ऑफ फादर एंड सन आर सेम, हाइट ऑफ मदर एंड डॉटर आर सेम. क्या है ये? आप देखते हैं कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे आपको टाइम कम लगता है किसी निश्चित डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए. इसे हम स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कहते हैं. एंड द स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज नोन एज कोरिलेशन. कोरिलेशन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव. एक पॉजिटिव कोरिलेशन का और एग्जांपल आप देख सकते हैं. मेडिटेशन increases level of confidence. More meditation means more concentration. ये positive correlation है. Positive होता क्या है? If both two or more variables vary in the same direction, the relationship between them will be positive. If they vary in opposite direction, it will be negative. So you can see positive relationship as far as age of husband and age of wife is concerned. Price of a commodity and amount of supply. A supplier would like to supply more unit of a commodity at higher price. If there is increase in price, he will supply more. If there is decrease in price, he will supply less. Both the items, price and supply, are varying in the same direction. Therefore, there exists positive relationship between price and supply. Then increase in heat means more temperature. Both are going to vary in the same direction. Again, it is positive example of positive relationship. Increase in height and weight. More height means more weight. That means positive correlation. When we talk about negative correlation, we find demand for a commodity may go down as a result of rise in price. प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर कम खरीदेगा, तो आप देखिए प्राइस बढ़ी, कंज्यूमर ने डिमांड को डिक्रीज कर दिया. दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव कॉरिलेशन. सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड डे ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वुलन गारमेंट की जो ऊनी कपड़ों की मांग है, सेल है, वो कम हो जाएगी. अगर एक और खासियत है प्यारे बच्चों जिसके कारण गवर्नमेंट को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, किसानों को भी, जब फसल कटती है उस समय अचानक सप्लाई बढ़ती है, तो सप्लाई बढ़ने से किसानों देखते हैं कि उनकी कीमत वस्तुओं की कम हो जाती है और किसानों को नुकसान होता है. इस नुकसान से बचने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कल्पना की गई है, जो कि अगले चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा. अगर हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में अगर आंसर आपका r = 1 है, पॉजिटिव है, तो ये परफेक्ट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है. इफ r = -1, in that case it is going to be as perfect degree of negative correlation. If the value of r is more than 0.6 but less than 1, it will be known as high degree of positive correlation. If the value of r means coefficient of correlation is more than -0.6 but less than -1, it will be high degree of negative correlation. Then if the value of r is more than 0.5 but less than 0.6, it is moderate positive correlation. If there is a negative sign, it will be considered as moderate negative correlation. If the value of r is more than 0 but less than 0.5, we find low degree of correlation, positive correlation. If it bears sign of negative, it will become negative, low degree of negative correlation. If the value of r is 0, there will not be any relationship between x and y. Dear students, we can calculate, we can show, we can find out coefficient of correlation by 3 different methods.
Number one is scatter diagram method, then Karl Pearson's coefficient method, then Spearman's rank correlation. Let us go one by one. I have shown you a particular picture in which we find the first diagram. When the data are plotted, we find a straight line upward sloping positive correlation. So first of all, it is positive. Secondly, it is perfect because all the data are lying in the same line, straight line. So perfect positive correlation is the example of this. Whereas in the second diagram we find it is the example of perfect degree of negative correlation because all the data of X and Y combinations are plotted in a straight line downward slope from left to right. When most of the data are plotted and made a straight similar to straight line upward sloping, it will be high degree of positive correlation. Similarly, if most of the data are lying in a straight line, almost in the straight line, it will be considered as high degree of negative correlation. Whereas we can see in this case low degree, moderate degree of positive correlation, and this in this particular case moderate degree of negative correlation. Similarly, if most of the data are nowhere and going to, when we plot it, try to plot a line, we will get a zero type of data. It will be zero correlation, that is, there is no correlation at all. Dear students, Karl Pearson was a person, he is a British statistician. In 1880, he propounded the concept of product moment method, which after his death has been propagated as, you can say, Karl Pearson's method after his death. So, in order to find out coefficient of correlation by Karl Pearson method, you have to apply formula R. R is the small r is the indicator of Karl Pearson's coefficient of correlation, which is equal to sigma xy upon n into standard deviation of x into standard deviation of y. Let us see how. Calculation of coefficient of correlation is possible by actual mean method. It is also possible by direct method, shortcut method, step deviation method. Correlation by actual mean method. Now let us see what steps are required to be taken. First of all, you have to calculate arithmetic mean of X series as well as Y series by using normal formula sigma x by n and sigma y by number of y. In this way, you have to take out deviation of x and y from their actual means of x and y respectively. Square the values of x and y calculated so far. प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, x बार निकालना होगा जो कि सिग्मा x अपॉन n से निकलेगा, y बार निकालना होगा जो कि सिग्मा y अपॉन y से निकलेगा। अब आपको दूसरे स्टेप पे स्मॉल x एंड स्मॉल y निकालना है। स्मॉल x निकालने के लिए x माइनस x बार करना होगा, स्मॉल y निकालने के लिए y माइनस y बार करना होगा। उसके बाद x जो स्मॉल x आपने निकाला उसका स्क्वायर निकालना होगा और स्मॉल y का भी स्क्वायर निकालना होगा, जिनको हम स्मॉल x स्क्वायर और स्मॉल y स्क्वायर कहेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सिग्मा स्मॉल x स्क्वायर निकालना है, स्मॉल y स्क्वायर निकालना है। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सिग्मा एक्स वाई भी निकल आएगा। नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला दिस sigma xy upon sigma x square upon into sigma y square. Let us calculate a particular question. Suppose this is the question given to us, x and y combinations. आप देखिए x लिख दिया आपने, y लिख दिया। आपने सबसे पहले x बार निकाला, जैसे निकालते हैं सिग्मा x अपॉन n से, और स्मॉल आपका 21 आ गया। नाउ 12 माइनस 21 इज 9, 15 माइनस 21 इज -6। इस तरीके से स्मॉल x आ गया। स्मॉल x का स्क्वायर कर देंगे, स्मॉल x स्क्वायर आ जाएगा। y बार निकाल लीजिए इसी तरह से, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन नंबर ऑफ y। तो y बार में से आप स्मॉल y निकाल लीजिए जैसा कि अभी हमने बताया, इसका स्क्वायर स्मॉल y स्क्वायर कहलाएगा। अब आप क्या करेंगे, स्मॉल x को, ये स्मॉल x है और स्मॉल y है, इस स्मॉल x को स्मॉल y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो स्मॉल xy आ जाएगा। अब आप इसको फॉर्मूले में रख सकते हैं।
इस लाइन के इसको सिग्मा एक्स वाई कहलाएगा और इसको सिग्मा वाई स्क्वायर है एंड दिस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। आप वैल्यूज को रख दीजिए, आपके पास आर आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड में आप देख सकते हैं उसमें आपको डेविएशंस या एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल लीजिए, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एक्स वाई आ जाएगा। अब क्या करना है, ये सिग्मा एक्स वाई है, ये दिस इज सिग्मा वाई स्क्वायर, दिस इज सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज सिग्मा एक्स। अब आपका फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। नाउ यू कैन सी इट विल बी n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। देखिए इसके अंदर आपका ये सिग्मा एक्स वाई है और सिग्मा एक्स आपका पहली लाइन का टोटल है, सिग्मा वाई आपका वाई का टोटल है। आप इसको यहाँ वैल्यूज कर दीजिए। देन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ आइटम इनटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाली लाइन का टोटल, और ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर वाली लाइन का टोटल। अब आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके सामने आर निकल आएगा। और आर को इंटरप्रेट कैसे करना ये मैंने पीछे टेबल में आपको बताया। समय बहुत कम है, कोशिश मैं कर रहा हूं इसको निकाल दिया जाए। देन शॉर्टकट मेथड की अगर हम बात करते हैं तो आपको अज्यूम मीन लेना। जब भी हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो अज्यूम मीन से करेंगे, जब भी हम स्टेप डिवीजन मेथड से करेंगे तो अज्यूम मीन से ही करेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आपने एक अज्यूम मीन 18 ले लिया, उससे dx निकाल दिया। dx निकालने का तरीका अभी हमने कई बार बताया आपको। px का स्क्वायर निकाल दीजिए, इसका 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से dx स्क्वायर निकल आएगा। y सीरीज में भी आप अज्यूम मीन ले लीजिए, उसके बाद dy निकाल लीजिए, फिर dy स्क्वायर निकाल लीजिए। अब आप dx को इस वाली लाइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए dy से, तो यू विल गेट dx dy। अब आपके सामने जो फॉर्मूला है थोड़ा बदल जाएगा। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, n इंटू dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू dy सिग्मा dy होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ आइटम ऑफ x सीरीज इंटू dx स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ आइटम ऑफ dy स्क्वायर माइनस dy होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने ये गेम का डायरेक्ट आ जाएगा। Step deviation method can also be used. As far as step deviation method is concerned, then you can find you have to apply dx। आपको ऐसे निकालना है, उसको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके dx प्राइम निकाल लेना है। कॉमन डिफरेंस इसमें 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका dx प्राइम निकल आया। और dx प्राइम निकलने के बाद आपको dx प्राइम का स्क्वायर निकालना है। ऐसे y सीरीज में क्या करना है, dy निकालना है, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 2 है कॉमन डिफरेंस, तो dy स्क्वायर हो जाएगा, dy आ जाएगा, dy प्राइम का जब स्क्वायर निकालेंगे तो dy प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। आप dx प्राइम और dy प्राइम, dx प्राइम आपका ये आपका dx प्राइम है और d आपका dy प्राइम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका dx प्राइम dy प्राइम आ जाएगा। फॉर्मूला आपका सेम है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, आप खाली प्राइम लगा दीजिए। In this way, step डिवीजन निकाल सकते हैं। कोरिलेशन निकालने का एक और मेथड है स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें आपको रैंक देना होता है। रैंक देना है x सीरीज को, रैंक देना है y सीरीज को। x सीरीज को जो आप रैंक देंगे उसको R1 कहेंगे, y सीरीज को जो रैंक देंगे उसको R2 कहेंगे। जो रैंक देने की खासियत है कि सबसे हाईएस्ट नंबर को या तो सबसे ज्यादा रैंक देंगे या सबसे कम रैंक देंगे। रैंक आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, d निकालना है। d इज इक्वल टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 ही करना है, R2 माइनस R1 नहीं करना, नहीं तो आपका आंसर डिफर कर जाएगा। इसके बाद स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए हम कैपिटल R का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने स्मॉल r का इस्तेमाल किया तो कैलकुलेशन का माना जाएगा, हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले। तो कैपिटल R का इस्तेमाल कीजिए। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, बहुत सरल फॉर्मूला है, इसको आप लगा करके स्पीयरमैन्स कोरिलेशन निकाल सकते। ये देखिए एक जजमेंट किया गया किसी स्पोर्ट्स इवेंट का। जज 1 ने ये रैंक दिए हैं, जज 2 ने ये रैंक दिए हैं। R1 दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज D। D इज इक्वल टू R1 माइनस R2,
5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, इस तरीके से आपका आर आ गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर इज 40। इसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। आपका इंटरप्रिटेशन जो है स्पेयरमैन्स का भी सेम है, कैलकुलेशन नहीं के वाला ही, इसलिए उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। व्हाट इफ रैंक रिपीट्स इटसेल्फ, अगर रैंक रिपीट करते हैं तो आपके वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर रैंक रिपीट करते हैं तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टाइम्स ए रैंक इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ये आपको ध्यान रखना होगा, बाकी बहुत सरल है। इसके बाद आपके सामने आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इज स्टैटिस्टिकल डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग चेंजेस इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। प्यारे बच्चों, जब भी हम इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो क्रॉक्सन एंड काउडेन, ये दो स्टैटिस्टिशियन हैं जिनकी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका नाम अवश्य है। What are the features of index number? First, सबसे पहली बात ये specialized. These are expressed in percentage. Measures the change in relation to time and place. Measures such items which otherwise cannot be measured directly. What are the problems in construction of index number? Index number. In order to construct index number, we have to face number one. Purpose of index number must be clarified. Selection of the base years should be with due wisdom, with due careful, otherwise we won't be able to come on right conclusion. The selection of number of items and commodities, the items which we are going to take into consideration must be used by most of the section of people of the society. Then price quotation must be must not be fluctuating manner. Selection of average, which average we are going to apply. This is going to be another problem before the statistician to find out the index number. The selection of appropriate weights, what type of weights we are going to give, whether quantity are to be taken in consideration or something else to be used as weight. Then selection of appropriate formula is another problem which every statistician has to face. So इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो इंडेक्स नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। जब प्राइस इंडेक्स नंबर की हम बात करते हैं तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी हो सकता है और रिटेल प्राइस इंडेक्स भी हो सकता है। नाउ यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा गवर्नमेंट करती है डिफरेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। देन it is considered as economic barometer. In order to measure air temperature, we use barometer. Similarly, if you want to measure the health of an economy, this index number is going to be used as the same device. That's why in order to define index number, we have used the word device. Index number is a special device. So it is going to study about trend analysis. Then it measures and compares the different times and different commodities and different countries you can compare. Index number help in measuring purchasing power. किसकी देश की purchasing power कितनी है ये हम index number से indicate कर सकते हैं, समझ सकते हैं। It also helps the government in policy formulation. Policy को formulate करने में government को help करती है। सबसे पहले अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो ये सबसे पहले सिंपल इंडेक्स नंबर होता है और वेटेड इंडेक्स नंबर होता है। अगर हम सिंपल इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हो सकता है या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, लिंक रिलेटिव जिसे हम कहते हैं। अगर हम वेटेड की बात करते हैं, वेटेड भी दो प्रकार से निकाला जा सकता है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हम बहुत थोड़ा फास्ट हो गए हैं, इस समय कोशिश कर रहे हैं कवर करने की। इसके अंदर ये कमोडिटीज दी हुई है, ये प्राइस ऑफ द बेस ईयर जिसको हम P0 इंडिकेट करेंगे, ये प्राइस ऑफ द करंट ईयर जिसको हम P1 इंडिकेट करेंगे। सिंपली आपको करना क्या है, सिग्मा P1 निकाल लीजिए, सिग्मा P0 निकाल लीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए सिग्मा P1 अपॉन P0। आप देखेंगे इसका आंसर आ गया 122.83। क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि इन दोनों पीरियड्स की कमोडिटीज का अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्राइसेस 22 पॉइंट, मोर देन 100 जो भी है वो 22.83% बढ़ी है। अगर लेस देन 100 है तो उतना परसेंट घटा है। जैसे अगर ये 98 आता है तो समझ लीजिए 2% प्राइस कम हुई है।
इसके अलावा आप चाहें तो बेस ईयर, जैसे एक तरफ ईयर दिया हुआ है और इधर प्राइसेस दी हुई है, तो आप चाहें तो बेस ईयर जो अर्लीस्ट ईयर है उसको बेस ईयर मान करके कर सकते हैं, या आपके क्वेश्चन में जो भी आपको बेस ईयर मानने के लिए कहा गया है वो भी आप बेस ईयर मान करके P1/P0 इंटू 100 वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये आपका बेस ईयर हमने 2010 लिया है, तो 40/40 इंटू 100 100 आ जाएगा। देन 50/40 इंटू 100 125 आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि देखिए ये 2010 और 11 में 25% कीमत बढ़ी है। इसी तरीके से आप अगर 2010 के कंपैरिजन में आप 2016 को देखते हैं तो 37% कीमत बढ़ गई है। अगर बेस ईयर हमें 2012 को लेते हैं हम, बेस ईयर बेटा सिलेक्शन करते समय ध्यान रखना है कि बेस ईयर में प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। जैसे इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इस साल की प्राइसेस आप अगर लेंगे तो नेचुरल है आप सही और नॉर्मल रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। प्यारे बच्चों, वेटेड एग्रीगेट की मेथड जो है वो 3 प्रकार का होता है, लेस्पियर मेथड, पासे मेथड एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। ये तीनों के फोटोग्राफ्स है, तीनों का टेन्योर भी दिया हुआ है। हम एक ही टेबल के माध्यम से तीनों को एक साथ समझाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। यहाँ हम देखते हैं कि कमोडिटीज दी हुई है, ये आपका बेस ईयर दे रखा है और ये आपका करंट ईयर दे रखा है। बेस ईयर की प्राइस को P0, बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0, करंट ईयर की प्राइस को P1, बेस ईयर करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1। आप निकाल लीजिए P0 Q0, P0 को Q0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, P0 Q0 आ जाएगा। फिर आप निकाल लीजिए P0 Q1, P0 को Q1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। P1 Q0 निकाल लीजिए, क्योंकि इन सबका इस्तेमाल इन तीनों स्टैटिस्टिशियंस ने किया है। एक तरीके से P1 Q1 भी निकाल दीजिए, यानी P1 Q1 निकाल दीजिए, तो ये करंट ईयर का है। अब आइए देखते हैं लेस्पियर मेथड का जो फॉर्मूला है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q1 करते हैं इंटू 100। अगर आप डेटा रखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आप लेस्पियर मेथड से इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। पासे मेथड से अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो पासे मेथड से इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। और फिशर्स का जो इंडेक्स नंबर है वो आइडियल इंडेक्स नंबर है। मैं चाहूंगा कि एक बार इसके ऊपर इंडेक्स नंबर इज गोइंग टू बी ए वेरी सीरियस चैप्टर एंड आई वुड लव टू come once again in order to teach this particular concept of index number. So यहाँ पे आप देखेंगे Fisher's ideal index number. Why is it ideal? Because it is going to be the most scientific and it satisfies almost all the algebraic treatments and it gives always accurate result. That's why it is, and it's a mixture of both Pache and you can say Lespier. तो अभी इसके अंदर आप देखेंगे इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए आपके ये पासे का है, ये लेस्पियर का है, ये पासे का मेथड है। दोनों का इंटू करके स्क्वायर रूट इंटू करके